Hello everyone. I welcome you all to our channel Exam Time. I hope you all are doing well. So this is the next lecture in the MCQ series part of previous year question we will see. In the last lecture, we have completed 10 questions. Okay, and the 10 questions were from July examination 2018 and December 2017. Okay. So in this lecture, basically from 2015 to 2018, there were 43 questions asked from teaching aptitude. And in this lecture, we will cover January 2017, then September 2016, okay? And hopefully we will try to cover till 2015, December and June exam, okay? देखते हैं कहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं इस लेक्चर में. Hopefully we will try to complete at least 20 questions in this lecture. Okay. So before we begin, again today we have a motivational quotation, and this is from the famous book by Paulo Coelho. And the book name is The Alchemist. I hope आपने पढ़ी होगी ये किताब. A very wonderful book. Once in a life, everyone should read this book. Okay. तो ये कोटेशन क्या कहता है? When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. जब भी आप किसी भी चीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं, आप चाहते हो किसी भी चीज को, चाहे वो आपका गोल है, कोई अचीवमेंट है, कोई सक्सेस है, कोई करियर है, समवन, कुछ भी जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो, कोई आपका पैशन हो सकता है, आपका लव हो सकता है, एनीथिंग, whatever you want to get in your life. तो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू मेक सम ट्राई. ओके, आपको कोशिश करना होता है. और अगर आप सच में कोशिश करते हो और शिद्दत आपका सही है, तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स एक साजिश करता है आपको उस चीज को आपसे मिलाने में. चाहे कितना भी ओड सिचुएशन क्यों ना हो, कितना भी अगेंस्ट क्यों ना हो सब कुछ आपके, दिस यूनिवर्स विल हेल्प यू टू गेट दैट. सो कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग. आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहें, अपना जो एफर्ट होता है वो लगाते रहें, और जो चाहत है उस चीज को पाने का, उसको कम ना होने दें. ठीक है. और अगर वो सच्चा है, जो आप चाह रहे हो, वो सही में आपका पैशन है, एंड यू आर रियली डिजायर्ड फॉर दैट, देन दिस होल यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट दैट. ओके. सो इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. So we have question in front of you. This question is based on UGC NET examination. Sorry, this is NET. UGC NET exam जनवरी 2017, जनवरी 2017 का पूछा गया ये सवाल. और 2017 में 6 क्वेश्चन आए थे नेट से, आप टीचिंग एप्टीट्यूड से, राइट. तो अभी रूल क्या है आपको पता है. क्वेश्चंस क्या करना है आपको, पढ़ना है, खुद से आंसर करना है, और फिर आंसर को सुनना है, देन यू विल प्रोसीड. ओके. तो लेट अस read the statement. So what the question says कि कुछ statements दिए हैं आपको, और that represents some acceptable propositions in respect of teaching learning relationship. Again teaching learning relationship की बात की जा रही है. Now you have to select the correct code to indicate your answer. So we have 6 statements given here, and you have to select the option. Okay. So बारी बारी से हम सारे statements को पढ़ते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज when students fail in a test, it is the teacher who fails. Okay. So see, these are basically propositions. Okay, that with respect to teaching learning relationship. बिल्कुल, अगर कोई स्टूडेंट टीचिंग सपोज किसी टेस्ट में फेल हो जाता है, तो व्हाट डज दिस मीन्स कि वो अगर फेल हुआ तो कहीं ना कहीं ये फेलियर सिर्फ स्टूडेंट का नहीं होता, टीचर का भी वो फेलियर होता है. वी कैन से दैट if students fail in a test, it is the teacher who fails. So first statement is correct, right? Now second statement states that every teaching must aims to ensure learning. Obviously हर एक टीचिंग का मकसद ही वही होता है कि learning ensured हो. So second option is as well as correct. Now third statement is there can be teaching without learning taking place. There can be teaching
विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस। बिना, देखो ऐसा तो हो सकता है ना कि टीचिंग हो रहा हो, कोई टीचर अपना एफर्ट लगा रहा हो, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, बट इट इज द लर्नर ना who get the learning, and if the learning is not interested, learner is not interested, and सपोज ऐसा ये पैसिव मैनर में होते जा रहा है, तो ऐसा संभव है कि टीचिंग हो रहा हो, लर्निंग ना हो रहा हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हम सही बोल सकते हैं। देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। तो बिना टीचिंग के क्या ऐसा हो सकता है कि लर्निंग ना हो? नहीं, जरूरी नहीं, बिना टीचिंग के भी लर्निंग होता है। तो दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। अ टीचर टीचर्स बट लर्न्स आल्सो, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट वन। टीचर पढ़ाता तो है लेकिन साथ में सीखता भी है। रियल लर्निंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग, बिल्कुल नहीं, रियल लर्निंग कभी भी रोट लर्निंग नहीं हो सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। अब देखो, जैसे हमने इसको स्टार्टिंग में दो दो स्टेटमेंट अगर हमारा करेक्ट मिला, तो आप सबसे पहले क्या करो, चार स्टेटमेंट पढ़ने से पहले एक बार आंसर देख लो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला और दूसरा सही मिलना है। इसमें तो नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें भी पहला दूसरा नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें पहला दूसरा है, इसमें पहला दूसरा है, तो हमारा इसमें से इसमें कोई ऑप्शन सही हो सकता है, दूसरा या चौथा में। ठीक है, तो चलो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हमने देखा कि ये सही है, तो फिर से आप मिलाओ कि क्या एक दो तीन स्टेटमेंट किसमें है, तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि सेकेंड नंबर ऑप्शन में ही एक दो तीन स्टेटमेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप बाकी चाहो तो तीन स्टेटमेंट को पढ़ना छोड़ सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है, बट not in the case of practice. In examination you can skip all these steps if you got the answer, okay? क्योंकि फाइनली आंसर लाना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, राइट? नाउ अगेन assertion reasons का क्वेश्चन। Learning is a lifelong process and reason is given that learning to be useful must be linked with life process. तो assertion तो सही लग रहा है, रीजन भी एक स्टेटमेंट के तौर पे सही लग रहा है, लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? इसको आप एक बार फिर से पढ़ें। लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, करेक्ट। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विथ लाइफ प्रोसेस। तो लर्निंग को यूजफुल बनाने के लिए हम लाइफ प्रोसेस के साथ उसको लिंक करेंगे, ठीक है। तो क्या लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है इसलिए ये रीजन है? आई डोंट थिंक सो। So correct option will be both A and R are true, but reason is not the correct explanation of A. So answer will be second. Next question पढ़ते हैं। Effectiveness of teaching has to be judged in the terms of, in terms of effectiveness of teaching की बात की जा रही है, किस टर्म में हम जज करेंगे उसको? करेज, कोर्स कवरेज, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन क्लासरूम। तो कोर्स कवरेज इफेक्टिवली जजमेंट का तो तरीका नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को भी हम ऐसा नहीं मान सकते कि टीचिंग को जज करना है। उसका लर्निंग आउटकम, बिल्कुल स्टूडेंट का जो लर्निंग आउटकम है ना, दिस विल बी द बेस्ट पैरामीटर, दिस विल बी द बेस्ट पैरामीटर टू चेक और जज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके सामने, स्क्रीन पॉज करो, सॉल्व करो, फिर सुनो, ठीक है। In which of the teaching method learners participation is made optimal and proactive? इसमें से कौन सा लर्नर्स पार्टिसिपेशन जो है मेथड जो है वो ऑप्टिमल और प्रोएक्टिव है? डिस्कशन मेथड, बज सेशन मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। इस चारों में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओके। सो आई होप इन चारों में से डिस्कशन मेथड जो है, दिस इज द बेस्ट method that make the learners participation very optimal and proactive. तो डिस्कशन मेथड से ही हम प्रोएक्टिव बना सकते हैं पार्टिसिपेशन को लर्नर की, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स इफेक्टिव टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू, फिर से चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा पावरफुल फैक्टर हो सकता है जो टीचिंग इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है? सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम। आप खुद ही देख लो, इसमें से अगर थोड़ा भी सेंसफुली आप सोचोगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। सबसे पावरफुल फैक्टर हो सकता है, सोशल सिस्टम को हम बहुत ज्यादा पावरफुल फैक्टर नहीं कह सकते, ना ही इकोनॉमिक स्टेटस को कह सकते, और ना ही किसी पॉलिटिकल सिस्टम को। तो एजुकेशनल सिस्टम जो है देश का, किसी भी नेशन का या कहीं भी
जो है वो पावरफुल फैक्टर होता है इफेक्टिवनेस को दिखाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर अगेन एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है, ये इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि इवैल्यूएशन से हर एक साल जो है एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पूछा ही पूछा गया है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग। तो क्या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है पेस ऑफ लर्निंग को ही एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए बनाया जाता है? हाँ, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का भी मकसद वही है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इन असर्शन जो है ये करेक्ट है। एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल। ये ऐसा नहीं है कि समेटिव इवैल्यूएशन के कंपैरिजन में आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हाईली रिलायबल बोल सकते हो, ऐसा कोई कंपैरिजन वाला चीज नहीं है। तो रीजन इज नॉट ट्रू। सो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये हमारा 2017 का क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेट एग्जाम, इसमें एरर हो गया है, बार बार एंटी लिखा गया, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूजीसी नेट एग्जाम सितंबर 2016। 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2016 में काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से आए थे, ठीक। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू। वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? डिस्कशन ऑन स्क्रिप्चरल टेक्स्ट, lecture discourse on values, seminar symposia on values, mentoring reflective session on values. So the best way to provide the value education is through lecture discourse on values. So B option will be correct. Okay. Which set of learners characteristics may be considered helpful in designing effective teaching learning system? Select the correct alternative from the course. फिर से आपके पास कुछ स्टेटमेंट है और इसमें से करेक्ट कोड जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ये सवाल है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। प्रायर एक्सपीरियंस जो है लर्नर का उस सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो इट मे बी कंसिडर्ड एज हेल्पफुल इन डिजाइनिंग द इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक बार चेक कर लो कि पहला स्टेटमेंट किस किस ऑप्शन में आ रहा है ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये गलत, ये गलत, सही या तो ये होगा या ये होगा। ए या बी में आपका कोई ऑप्शन सही होगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड्स। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड्स, इज इट वर्थ? नो, आई डोंट थिंक सो। सो दिस इज द करेक्ट, इनकरेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट को सीधा आप एलिमिनेट करो। इसमें है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो एक ही बचा बी। बी हो जाएगा आपका आंसर। आप बिना बाकी स्टेटमेंट को पढ़े हुए सीधा आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। बाकी हम एक बार पढ़ते सारे स्टेटमेंट्स को। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एबिलिटी ऑफ लर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, करेक्ट। स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड, स्टूडेंट का क्या लैंग्वेज बैकग्राउंड मैटर करेगा? बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर मान लो लर्नर सपोज जानता है तेलुगु या कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज, बट द टीचर इज कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश एंड द लर्नर इज नॉट नोइंग दैट लैंग्वेज, तो स्टूडेंट का बैकग्राउंड लैंग्वेज का जानना जरूरी है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड। नो, ड्रेस कोड में इंटरेस्ट से कोई खास सा फर्क नहीं पड़ता, तो ये हम इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन जो है स्टूडेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर था इसका डी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ कॉलेज लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर हैज प्लान्ड हिज हर लेक्चर्स। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप एक बार क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉलेज लेवल का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कुछ लेक्चर्स को प्लान करता है with an intent to develop cognitive dimensions of students centered on skills of analysis and synthesis. Okay. उसका इंटेंशन क्या है? कॉग्निटिव डायमेंशन स्टूडेंट का जो है वो डेवलप करना, और सेंटर्ड होना चाहिए स्किल एनालिसिस पे और सिंथेसिस पे। दो सेट दिया हुआ है आपको नीचे। सेट 1 जो बताता है लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज, और सेट 2 बता रहा है कॉम्प्राइजिंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोमोटिंग देम। इनको सही मैच करना है और सही कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 3 लेवल है कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल।
आपने अगर लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा है तो यहाँ पे आपको पता होगा लर्निंग का जो लेवल होता है बेसिकली कॉग्निटिव लेवल पे 3 तरह से हम लेवल को डिफाइन करते हैं, मेमोरी लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे और रिफ्लेक्टिव लेवल पे। इसको एक बार अगर जल्दी से समराइज करें तो मेमोरी लेवल होता है जो एकदम अर्ली एज में जो लर्निंग लेवल होता है आपका, जिसमें आप चीजों को सिर्फ याद करते हो। उसके बाद का लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें आप चीजों को समझ के पढ़ते हो, ठीक है, जिसमें आपको समझ भी होती है उस चीजों की, ठीक है, बस अगर याद नहीं करते। रिफ्लेक्टिव लेवल इज द मोस्ट एडवांस लेवल, इसमें आप चीजों को समझते हो और समझा भी सकते हो और कुछ नया आप इसमें क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं करेक्ट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रमोट करने का वो क्या क्या हो सकता है। So, giving opportunity for discriminating examples of non-examples of a point. इसमें जो आपका एक तो चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मेमोरी लेवल आपने पढ़ा तो मेमोरी लेवल के लिए चेक करो कि मेमोरी लेवल के लिए क्या इसमें से करेक्ट रिक्वायरमेंट हो सकता है जो हम प्रमोट कर सके कॉग्निटिव इंटरचेंज, ठीक है। तो पहला जो है गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स ऑफ ए पॉइंट, तो आई डोंट थिंक कि दिस ऑप्शन इज फॉर मेमोरी लेवल। बेसिकली अगर मान लो आप एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल किसी एक पॉइंट का है, इसमें आपको डिस्क्रिमिनेट करना है यानी कि डिफरेंस पता करना है, तो ये मेमोरी लेवल पे तो नहीं हो सकता, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल की चीज है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा ये आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल के। सेकेंड क्या है, रिगार्डिंग, चलो इसमें ए बी लिख देते हैं, ये बी हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग। रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द रिप्रेजेंटेशन, रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द रिप्रेजेंटेशन, तो जो भी प्रेजेंटेशन होगा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताना। तो ये तभी तो मतलब ये हो गया, फिर मेमोराइज करने की बात हो गई है ना, तो ये मेमोरी लेवल पे हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका ये हो जाएगा ऑन मेमोरी लेवल, ठीक है। उसके बाद आस्किंग द स्टूडेंट्स टू डिस्कस वेरियस आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरियस आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना, ये आई डोंट थिंक इसमें से इस चीज में फिट बैठेगा। क्रिटिकली एनालाइजिंग द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस, बिल्कुल देखो क्रिटिकली एनालाइज आप तभी कर सकते हो जब आप चीजों को समझ लेते हो, यानी उससे भी ऊपर का लेवल, यानी दैट इज द रिफ्लेक्टिव लेवल, ओके। सो ये हमारा सी हो जाएगा। तो एक बार ढूंढ लेते हैं, जैसे मान लो अगर आपको पहला ही ऑप्शन के लिए ए मिला है, बी मिला है फर्स्ट के लिए, तो अब इसमें देखो कि ए जो है इसमें फर्स्ट किस में आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और सॉरी पहला के लिए बी आ रहा है, तो बी में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, बी में सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बी में देखो फर्स्ट कहाँ आ रहा है, ये फोर्थ है, ये नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, आपको फर्स्ट आना चाहिए बी के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज दिस ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ से आप बस एक भी सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो आंसर को, तो सी आपका आपका आंसर हो जाएगा। देखो सेकेंड जो है आपका ए के लिए आ रहा है, सेकेंड ए के लिए आ रहा है, और जो फोर्थ है आपका वो सी के लिए आ रहा है, फोर्थ जो है वो सी के लिए आ रहा है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप आपको काफी सीखने के लिए मिला होगा, सब क्लियर रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द फर्स्ट सेट टू द सेकंड सेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। तो क्वेश्चन हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम पे बेस्ड जाएगा। देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रहा है, समेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रहा है, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, उसका नॉर्म्स क्राइटेरियन प्रेफरेंस। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि किस लेवल पे सेट में ये मैच कर रहा है, राइट। तो देखते हैं पहला जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इसमें से ढूंढ लेते हैं जैसे कौन सा हो सकता है। जैसे इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स विद रेगुलरिटी, ठीक है। उसके बाद टेस्ट एंड देयर इंटरपर्सनल बेस्ड ऑन अ ग्रुप एंड सर्टेन यार्ड स्टिक। ये यार्ड स्टिक यहाँ है, ये यार्ड स्टिक यहाँ होना चाहिए था, okay? ये यार्ड स्टिक यहाँ होना चाहिए था। ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स इवैल्यूएशन, ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम। देखो फाइनल लर्निंग आउटकम का ग्रेडिंग जो होता है ये आपको पता है क्लियरली, ये जो है ये सबमिटिव असेसमेंट का इवैल्यूएशन का चीज है, तो ये तो बी हो जाएगा, यानी थर्ड नंबर का करेक्ट ऑप्शन आपका बी मिला। देखो इसमें से कोई भी आप अगर सेलेक्ट करो, कोई भी आपको अगर सही मिल रहा है, ठीक है, जैसे इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट अगर बात करें विद रेगुलरिटी के साथ, तो ये जो है आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ये आपको जो मिलेगा ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए काम आता है, तो ये हो जाएगा आपको सी, ठीक है। तो अगर यहाँ से भी आप ढूंढो आंसर कि पहला में सी जो है ये सी के लिए फर्स्ट आएगा ऑप्शन, सेट टू सी का फर्स्ट होगा, तो सी में देखो फर्स्ट कहाँ है,
उसी में फर्स्ट पहले ऑप्शन में ही मिल रहा है, यहाँ से आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, ये आंसर सही हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग। क्योंकि देखो फिर आपने जैसे सेकंड ढूंढा ना, थर्ड की ग्रेडिंग जो है फाइनल, ये आपका सबमिटिव असेसमेंट होता है, तो देखो थर्ड नंबर में बी आना चाहिए, आ रहा है। ठीक है, जैसे सेकंड स्टेटमेंट क्या है, टेस्ट एंड देयर इंटरपर्सनल बेस्ड ऑन ग्रुप एंड सर्टेन ईआर डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो है आपको ये सेकंड जो है वो कहाँ हो जाएगा, नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस के लिए आ जाएगा ये चीज। ठीक है, और क्विज एंड डिस्कशन टेस्ट जो है ये सब आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है, राइट। तो ए जो है वो फोर्थ हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट सेट हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अगेन, फिर से आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कॉन्सिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। अगेन इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से देखो सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो, और इसमें से देखो कोई भी स्टेटमेंट आपको जो सही मिला एक बार मैच कर लो, और आप आंसर को एलिमिनेशन मेथड से भी जल्दी जल्दी बना सकते हैं। टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, तो टीचर का जो नॉलेज है सब्जेक्ट का, ये जो है फैक्टर है जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर टीचिंग को ये करता है। तो बिल्कुल सही बात, ए करेक्ट है, तो ए करेक्ट जिसमें है उसको आप रखो, बाकी को एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था, ये तीन ऑप्शन आपका पहले स्टेटमेंट से ही एलिमिनेट हो रहा है, तो आंसर आपका सीधा डी हो जाएगा इसका। बाकी स्टेटमेंट को भी हम पढ़ेंगे। टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड नॉट इट नेसेसरी, कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर नेसेसरी, टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, टीचर्स का एबिलिटी स्टूडेंट को प्लीज करना, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, ये भी नहीं होगा। टीचर पर्सनल कॉन्टेक्ट विद स्टूडेंट, टीचर का स्टूडेंट के साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट का कोई मतलब नहीं होता अगर हम सही इफेक्टिवनेस टीचिंग की बात करें तो। टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शंस, करेक्ट, ये भी हो सकता है ए सी एंड एफ। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ए सी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन आपके सामने, तीन क्वेश्चन है, सॉरी चार क्वेश्चन आपके सामने, 6 नंबर। Oh, sorry. One thing has been mistake in this question. Question number 7 has not been included in this slide. Extremely sorry. Anyway, देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लगता है शायद गलती से मैंने कॉपी नहीं किया। ठीक है, चलो 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, टीचिंग एड जो है किस ग्राउंड पे जस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक, तो अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लासरूम, मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। तो ऑब्वियसली इफेक्टिव एंगेजमेंट जो होगा स्टूडेंट का लर्निंग टास्क में, ये इस मेथड पे हम जो है ये टीचिंग एड से जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। एज ए टीचर इसमें से क्या ऑप्शन है जो आप एक इफेक्टिव प्रेजेंस ऑफ क्लासरूम को इंश्योर करने के लिए करोगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूज ऑफ पीयर कमांड, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, इसमें तो नहीं हो सकता। पीयर कमांड का यूज करना इज नॉट करेक्ट वन। ओके, adoption of well established posture, being authoritarian, ये भी नहीं। तो सी विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर द इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम, कि आपका जो स्टैब्लिश पोस्चर है वेल स्टैब्लिश पोस्चर का एस्टैब्लिशमेंट हो। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखो, इमेजिन यू आर वर्किंग एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस। आप किसी एक इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैनेज करते हो, आप उसमें काम कर रहे हो, और वहाँ पे सारे पीपल जो है वो इक्वल स्टेटस पे हैं। इसमें से कौन सा मेथड कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट होगा, नॉर्मली इम्प्लॉयड इन सच कॉन्टेक्स्ट। horizontal communication, vertical communication, cross communication and corporate communication, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो बेस्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बेस्ट होता है। ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अगर सेम स्टेटस के लोग हैं तो हम लोग उसमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ टीचर हैज टू टेक cognize cognizance of while addressing students in a classroom. Avoidance of proximity, voice modulation, repetitive pause and fixed posture. इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है हम उसको कॉग्निजेंस देंगे एड्रेस स्टूडेंट को एड्रेस करने में क्लासरूम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर, क्योंकि आपका आवाज जो है उसका जो मॉड्यूलेशन है वो रेगुलर होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, राइट। तो नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर रहा होगा।
अब दिसंबर 2015 में पूछे गए सवाल की बात करते हैं, ठीक है। इस साल तो 11 सवाल आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन क्या है। ग्रेटर द हैंडीकैप ऑफ द स्टूडेंट कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ग्रेटर द डिमांड ऑन द हैंडीकैप्ड ऑफ द स्टूडेंट का, अगर मान लो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आना है वो ज्यादा है, तो इसमें से डिमांड किसका ज्यादा होगा। तो ये हो जाएगा आपका किसके ऊपर, ऑब्वियसली फैमिली सोसाइटी या स्टेट का, तो टीचर का ही होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक टीचर। What are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation? CCE की बात कर रहा है। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो कि CCE इवैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। It increases the workload on students by taking multiple tests. ये तो बिल्कुल भी इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। यहाँ से आप सीधा काट सकते हो, जो जहां जहां ए मिले उसको आप काटो, ए कट गया, ए कट गया, यानी कि बी या डी में से कोई ऑप्शन होगा। इट रिप्लेस मार्क्स विथ ग्रेड्स, बिल्कुल सीसी में जो होता है वो मार्क्स की जगह पे हमें ग्रेड देखने के लिए मिलता है। तो बी ऑप्शन जो है इसमें भी है, इसमें भी, तो दोनों सही हो सकता है। इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, इट इवेल्युएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सीसी में कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन है, तो हर एक एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट का इवेल्यूशन होता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, हाँ मेन जो मकसद भी था सीसी का वो ये था कि एग्जामिनेशन फोबिया को कम करना। तो सी इज करेक्ट, ऑब्वियसली डी इज ऑल्सो करेक्ट। सी इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये बी सी डी, बी सी डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, again which of the following attributes denote great strengths of a teacher? इसमें से चार स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, सेटिंग एग्जांपल्स, विलिंगनेस टू पुट assumption टू द टेस्ट, एक्नॉलेजिंग द मिस्टेक्स। तो इसमें से कौन सा ग्रेट स्ट्रेंथ बताता है किसी भी टीचर का। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और खुद अपने सेंस से कोशिश करें तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ये ऑप्शन है पहला, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट किसी टीचर का एक ग्रेट स्ट्रेंथ तो हम नहीं बोल सकते, तो ये हो जाएगा गलत। तो जैसे ही एक ऑप्शन आपको स्टेटमेंट गलत मिला तो करना शुरू करो एलिमिनेशन, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और करेक्ट ऑप्शन आप सीधे बना सकते हो बी को, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। C is setting examples is correct one. Willingness to put assumption to the test is the correct one. It may be the greatest strength of a teacher, right? Acknowledging mistakes, बिल्कुल एक टीचर को अपने मिस्टेक्स को एक्नॉलेज तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो B, C, D are the correct statements. Okay. Which one of the following statement is correct in context of multiple choice type questions? Multiple choice type questions के लिए से क्या करेक्ट हो सकता है। अगेन इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन टाइप, हाँ सही बात है, ट्रू फॉल्स टाइप से ज्यादा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चंस, दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट टाइप। नो नो, सब्जेक्टिव भी नहीं होना चाहिए, लेस ऑब्जेक्टिव भी नहीं होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड तो होना ही चाहिए। दे आर मोर सब्जेक्टिव भी नहीं हो सकता, तो दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स। जैसे ट्रू फॉल्स में क्या होता है, दो स्टेटमेंट होते हैं, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लेकिन मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, चार स्टेटमेंट होता है, ए बी सी डी, चार ऑप्शन होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है बढ़ाया जाता है इसमें, यानी कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है ट्रू फॉल्स से ए कंपैरिजन में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। पांचवा क्वेश्चन, एज अ चेयरमैन ऑफ इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन जैकस डेलर रिपोर्ट टू यूनेस्को। यूनेस्को में जैकस डेलर रिपोर्ट जो आया था उसके अकॉर्डिंग जो टाइटल दिया गया था इसका, इस कमीशन का, वो टाइटल का नाम क्या है पूछा जा रहा है। ये थोड़ा सा ओल्ड न्यूज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग था ये क्वेश्चन। फिर भी इसका करेक्ट ऑप्शन अगर आपको पता हो तो दिस वाज लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लर्निंग द ट्रेजर विद इन। लर्निंग द ट्रेजर विद इन वाज द टाइटल ऑफ a commission on education, okay, reported to UNESCO. What are required for good teaching? Good teaching के लिए क्या required है इसमें? Diagnosis, remedy, direction, feedback. इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको कि ये चारों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। तो डायग्नोसिस भी इंपॉर्टेंट है, रिमेडी भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और फीडबैक भी इंपॉर्टेंट। इसमें से किसी भी चीज को आप काट नहीं सकते कि किसी भी गुड टीचिंग के लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट।
A will be the correct option. Okay, A will be the correct option. 7वां क्वेश्चन देखते हैं. The main objective of students evaluation of teacher are student evaluation of teacher. ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट इवोल्यूशन, टीचर का जो स्टूडेंट इवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें से क्या है? फिर से अगेन 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट सेलेक्ट करना है आपको, क्या क्या होगा इसमें, राइट. तो पहला स्टेटमेंट क्या है? टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट वीकनेस. तो स्टूडेंट के वीकनेस का जो इंफॉर्मेशन है बस वो गैदर करना. उसके बाद टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचर्स ट्रेंड. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी. सही है कि टीचिंग को सीरियसली लेना चाहिए टीचर को. ठीक है. टू हेल्प टीचर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, दिस इज आल्सो करेक्ट. अगर 2 करेक्ट मिल गया आपको तो बी सी करेक्ट यही दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ये भी हो सकता है. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. तो देखो डी करेक्ट है या नहीं है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं. टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन टीचर स्टेट्स. बिल्कुल, अगर मान लो स्टूडेंट का जो इवैल्यूएशन है टीचर्स का, तो वहां पे अगर हम देखें तो जो टीचर का जो बेसिक कोई ट्रेट है, कोई आदत, कोई लक्षण ऐसा जो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है. तो डी इज ऑल्सो द करेक्ट. सो बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. ओके, बी इज द करेक्ट आंसर. 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन as the beginning of a dynamic pattern of ideas is referred as systemization, problem orientation, idea protocol, mind mapping. इसमें से कौन सा मेथड जो क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए बिगिनिंग डायनेमिक पैटर्न आइडिया से रिलेटेड या रेफर्ड है? तो इसमें से ये जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है हमारा माइंड मैपिंग. ओके, सो माइंड मैपिंग जो है, ये एक माइंड मैपिंग पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है. जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर चीज है, इसको बाकी चीजों से जो भी रिलेशन है, इसको हम क्या करते हैं, एक पिक्टोरियल, एक इन्फोग्राफिक डायग्राम टाइप चीज बनाता है, जिससे हम एक चीज को सारे चीजों से इंटर रिलेट करते हैं और एक पूरा का पूरा एक पैटर्न बनाते हैं, जहाँ से आइडिया को अच्छे से इस चीजों को समझा जा सकता है. ठीक है, तो माइंड मैपिंग इज द by using mind mapping बेसिकली सेंट्रल पॉइंट जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग में डायनेमिक पैटर्न, वो हम कर सकते हैं इसको. ठीक है. 9th क्वेश्चन क्या है, देखो जल्दी से. 3 क्वेश्चन है, ये 3 लास्ट क्वेश्चंस ऑफ 2015 एग्जामिनेशन. जल्दी से आप बना के देखें इसको. एटीट्यूड, एक्शंस एंड अपीयरेंस. एटीट्यूड, एक्शंस एंड अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशंस आर कंसीडर्ड एज. एटीट्यूड है, एक्शन है और अपीयरेंस है. इसमें से जो क्लास कॉन्टेक्स्ट है क्लासरूम का कम्युनिकेशन, इसको किसमें कंसीडर कर सकते हैं? वर्बल, नॉन वर्बल, इम्पर्सनल या इरेशनल. तो एटीट्यूड, एक्शन और अपीयरेंस, ये सब चीज हो जाता है नॉन वर्बल. तो ये हो जाएगा नॉन वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन. ओके. मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, टीचर और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्पूरियस होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, यूटिलिटेरियन होना चाहिए, कॉन्फ्रंटेशनल होना चाहिए. तो ये यूटिलिटेरियन होना चाहिए. ठीक है. जो टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन है वो यूटिलिटेरियन होना चाहिए. ओके. लास्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम अ कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय. एक कम्युनिकेटर का जो ट्रस्ट लेवल है वो किस बात से डिटरमाइन होता है? द यूज ऑफ हाइपरबोल से नो, द चेंज ऑफ वॉइस लेवल. अगर मान लो वॉइस लेवल का चेंज हो रहा है तो इससे तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा. द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कोई अचानक से कोई अजीब सा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट अगर कोई कम्युनिकेटर बोलने लगे तो ये भी हम उसका जो कम्युनिकेटर का लेवल है डिटरमिनेशन है वो पता नहीं कर सकते. आई कॉन्टेक्ट एक काफी अच्छा पैरामीटर होता है. एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो अपने आई कॉन्टेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से यूज करता है और यहाँ से हम उसके ट्रस्ट लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर मान लो एक अच्छा आई कॉन्टेक्ट मिल रहा है टीचर का स्टूडेंट के साथ या जो कम्युनिकेटर है और जो लिसनर है उनके साथ, तो यहाँ से हम उसके ट्रस्ट लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं. तो आई कॉन्टेक्ट इज द करेक्ट आंसर. और ये था हमारा 2015 का क्वेश्चन. एंड फाइनली वी हैव जून एग्जाम 2015 क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी. तो कॉग्निटिव एबिलिटी की बात कर रहा है, इसमें से कॉग्निटिव एबिलिटी का जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो क्या है? तो ये है इवैल्यूएटिंग. ठीक है. सबसे पहले क्या आता है आप देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पता चलेगा नोइंग होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, देन फाइनली नो पहले हाईएस्ट लेवल में इवैल्यूएटिंग आएगा, राइट.
इवेल्युएटिंग इज द राइट, सबसे पहले नोइंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन एनालाइजिंग, देन इवेल्युएटिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इंपैक्ट द टीचिंग, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि टीचिंग को इंपैक्ट नहीं करता, पूछ रहा है कि इंपैक्ट नहीं करता, राइट। सो पहला ऑप्शन है आपका क्लासरूम एक्टिविटीज दैट इनकरेज लर्निंग, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, टीचर्स नॉलेज। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि टीचिंग को इम्पैक्ट नहीं करता? ये सोशियो बैकग्राउंड जो है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड टीचर या स्टूडेंट का से मैटर नहीं करता, ठीक है। ये तो यहाँ से करेक्ट आप सीधा बना सकते हैं। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट, इसमें से टीचिंग एड है कुछ, इसमें से करेक्ट क्या क्या है, चारों स्टेटमेंट में आपको पता करना है, ठीक है। पहला है दे हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, दे हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर, they make teaching learning process interesting, they enhance the role of learning, okay। तो पहला जो ऑप्शन है they help in retaining the concept of for longer duration, ये सही है। they help students to learn better, ये भी सही है। they make teaching learning process interesting, इसमें से कह रहा है कि टीचिंग एड क्या क्या हो सकता है, तो टीचिंग एड ये नहीं हो सकता, तो सॉरी 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 क्यों नहीं हो सकता, टीचिंग एड तो ये भी यूज हो सकता है ना। ये क्लियरली आपको दिख रहा है, रूट लर्निंग जो है ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, रूट लर्निंग इज नॉट द करेक्ट थिंग, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसमें से डी वाला साट दो, ये साट गया, ये साट गया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओके। बी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, ये लास्ट 3 क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है। टेक्निक यूज्ड बाय अ टीचर टू टीच इंक्लूड, इसमें से क्या क्या टेक्निक इंक्लूडेड है टीचर के द्वारा टीच करने के लिए, ठीक है। तो लेक्चर है, इंटरेक्टिव लेक्चर है, ग्रुप वर्क है, सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, इंटरेक्टिव लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, ग्रुप वर्क is also important and self study is also important, so all 4 techniques used by teacher to teach can include all these 4, so D हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, अचीवमेंट टेस्ट की बात की जा रही है, कॉमनली यूज किया जाता है किस पर्पस के लिए, सो दिस इज यूज्ड टू असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। सो जो अचीवमेंट टेस्ट है वो टीचिंग के बाद जो लर्निंग कितना हुआ है, कितने लेवल का लर्निंग हुआ है, इसको चेक करने के लिए, इस पर्पस के लिए इसको किया जाता है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अ गुड टीचर इज वन, एक अच्छा शिक्षक कौन है जो अच्छा इंफॉर्मेशन देता है, एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स को, प्रिंटेड नोट देता है स्टूडेंट्स को, या इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को, इसका आंसर आप खुद देंगे, आप खुद ही सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। एक अच्छा इंफॉर्मेशन देने वाला टीचर अच्छा है, कि करेक्ट प्रिंसिपल देना अच्छा है, या प्रिंटेड नोट्स देना अच्छा है, या ऐसा है कि वो इंस्पायर करे स्टूडेंट को सीखने के लिए, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक शिक्षक स्टूडेंट को अगर इंस्पायर कर रहा है लर्निंग के लिए, अगर मैं अभी जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको, जो भी सिखा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है मैथ्स, या आपको कुछ कॉन्सेप्ट देता है सिर्फ, ठीक है, तो या आपको कुछ मिल रहा है, कुछ नोट्स मिल रहा है, तो यही बस मकसद नहीं होता, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मकसद या जो है इसका ऑब्जेक्टिव वो ये है कि आप इंस्पायर हो लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, बी रेडी टू लर्न। तो अगर ऐसा आपके अंदर इंस्पिरेशन आता है थ्रू माय लेक्चर, देन इट विल बी द बिग अचीवमेंट फॉर मी, एंड एक अच्छा शिक्षक कोई तभी कहलाएगा जब वो स्टूडेंट को क्या करे, इंस्पायर करे फॉर लर्निंग, राइट। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप सब क्लियर रहा होगा आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 2014 के सारे, 14 से लेके 2006 तक के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसके बाद फिर रिसर्च एप्टीट्यूड को भी हम रिज्यूम करेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड का जो लेक्चर्स है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ढेर सारा ध्यान रखिए अपना, खूब पढ़ें, ठीक है। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।